میں پیدا ہوا تو میرے گھر والوں کے لیے اور میرے لیے دو بری خبریں تھیں. کریز تھا کہ میں نے ایک تو وہ نہیں کرنا کہ جو ہر بلائنڈ پرسن کر رہا ہے. ہماری میڈیا انڈسٹری کے بہت بڑے بڑے لوگوں سے میں نے جا کے ملاقاتیں کی. انہوں نے کہا کہ نہیں, آپ ریڈیو میں تو کنٹینیو کر سکتے ہیں, کیمرے کی طرف آنے کا مت سوچیے گا. ڈسیبلٹی تو آپ کی خدا نخواستہ اگر ہے تو وہ آپ کے جسم کے ایک حصے میں ہے, اور جو میرا پرسنل ایکسپیرینس ہے وہ کہیں نہ کہیں آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہو جاتی ہے. بچے آ کے اس طرح کے لیم ایکسکیوزز دے رہے ہوتے ہیں جس کا کوئی سر اور پیر واقعی میں نہیں ہوتا. السلام علیکم ناظرین, شیئرنگ آف پروفیشنل وزڈم کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان علی رحمان خالد. ناظرین, انسان کی زندگی میں اچھے واقعات بھی ہوتے ہیں اور کچھ ایسے واقعات بھی ہوتے ہیں جن سے ان کو بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے. یعنی انسان بہت کچھ سیکھتا ہے اپنی زندگی میں. یہ سیکھنے کا جو پروسیس ہے یہ کنٹینیوسلی شروع سے لے کے آخر تک چلتا رہتا ہے. لیکن اس میں جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں کا کس طرح استعمال کرتے ہیں اور کتنا شکر ادا کرتے ہیں. اور شکر کے اگر مفہوم میں تھوڑا سا ہم چلے جائیں تو وہ صرف زبان سے شکر ادا کرنا نہیں ہے, بلکہ وہ یہ ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں سے لوگوں کی خدمت کس طرح کرتے ہیں اور لوگوں کی ہیلپ کس طرح کرتے ہیں. یہ بھی شکر کے زمرے میں آتا ہے. آج جو مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں زین خان صاحب, یہ ایک ایسی مثال ہیں کامیابی کی, محنت کی, اسٹرگل کی, کہ انہوں نے اپنی زندگی کے جو مشکل ترین لمحات تھے ان کو بہترین لمحات میں کیسے کنورٹ کیا. وہ ایسے کنورٹ کیا کہ یہ ینگسٹ آر جے ہیں اور پاکستان کے فرسٹ بلائنڈ اینکر ہیں. ہم ان سے یہ جانیں گے کہ عام طور پہ لوگ چاہتے ہیں کہ ہمیں کوئی کام نہ کرنا پڑے اور ہم بیٹھے رہیں اور ہم جو ہے وہ بس کسی طرح ہمارا جو ہے نا وہ کام چلتا رہے. لیکن انہوں نے ایسا نہیں سوچا. حالانکہ اگر یہ چاہتے تو کچھ بھی نہ کرتے, لیکن انہوں نے سوچا کہ یہ کچھ کریں اور کچھ ایسا کریں جس سے ان کا اپنا جدا گانا مقام پیدا ہو. وہ گو کہ ان کا جدا گانا مقام اسی دن پیدا ہو گیا تھا جس دن انہوں نے سوچ لیا تھا کہ میں نے کچھ کرنا ہے, لیکن پھر اس کو پریکٹیکلی امپلیمنٹ کرنا یہ بہت بڑی بات ہے. السلام علیکم زین خان صاحب, کیسے ہیں آپ؟ جی بہت شکریہ جی. سر, میں آغاز یہاں سے کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کی سٹوری, یعنی آپ نے کب آغاز کیا اور میڈیا کی فیلڈ میں آپ کا انٹرسٹ, جیسے آپ بطور آر جے بھی کام کر رہے ہیں, بطور اینکر بھی کام کر رہے ہیں اور سوشل ورک بھی آپ بہت سارا کر رہے ہیں, تو میڈیا کی فیلڈ کا انتخاب آپ نے کب اور کیسے کیا؟ کس طرح آپ کی دلچسپی ڈیولپ ہوئی میڈیا کی فیلڈ میں اور آپ کا انٹرسٹ ڈیولپ ہوا اور آپ نے سوچا کہ میں اچھا بول سکتا ہوں؟ سب سے پہلے تو آپ کا بہت شکریہ مجھے بلانے کے لیے. ویلکم سر. میں تھوڑا سا اس سے بھی پیچھے جانا چاہوں گا. میں بلانگ کرتا ہوں ڈسٹرکٹ بہاولپور سے. اس کی ایک چھوٹی سی تحصیل ہے جو کہ بہت ہی انڈر ڈیولپڈ سمجھی جاتی ہے, جس کا نام حاصل پور ہے. میری پیدائش وہاں پہ ہوئی, اور جب میں پیدا ہوا تو میرے گھر والوں کے لیے اور میرے لیے دو بری خبریں تھیں. ایک یہ کہ میرے والد صاحب اس سے چند ماہ پہلے وفات پا گئے تھے. دوسرا یہ کہ میں دیکھ نہیں سکتا تھا. اس وقت میری ویژن اراؤنڈ کوئی 10% تھی ہارڈلی. تو میری والدہ نے شفٹ کیا اس چھوٹے شہر سے ایک بڑے شہر کی طرف, یعنی حاصل پور سے بہاولپور کی طرف. صحیح. تو مجھے انہوں نے اور ارد گرد کے لوگوں نے یہ ہمیشہ احساس دلایا کہ میری مدر نے میرے لیے ایک بڑی قربانی دی ہے, ایک سٹیپ لیا ہے. اپنا گھر چھوڑ کے ایک بیوہ کے لیے کسی اور شہر شفٹ ہو جانا, آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے سوشل سرکمسٹانسز میں اتنا آسان نہیں ہوتا. بالکل. اور ہیونگ اے اسپیشل چائلڈ از آلسو اے بگ اسٹیریوٹیپیکل پرابلم ان آر سوسائٹی. تو انہوں نے وہاں سے جب شفٹ کیا, میں بلائنڈ اسکول بہاولپور سے میری ایجوکیشن ہے, تو اسکول کے ٹیچرز نے ہمیشہ سے مجھے ایک اسپیشل ٹریٹمنٹ دیا, آلدو ایوری بڈی واز بلائنڈ دیر. لیکن مجھے اللہ کی طرف سے یہ عطا تھی کہ میرے ٹیچرز تھے وہ بڑے کوآپریٹیو تھے, انہوں نے ہمیشہ مجھے انکریج کیا. اور جو اسٹیج اپیرنسز ہیں, مجھے یاد ہے کہ میرا جو پہلا ریڈیو کا شو تھا ایز اے چائلڈ گیسٹ, آئی واز ان کلاس 4th جب ریڈیو پاکستان بہاولپور ہم گئے. صحیح. اور ہر موقع پہ انہوں نے مجھے اسپیچ وغیرہ کے لیے ایون 7th یا 8th کلاس میں نے کمپیئرنگ کرنا شروع کر دی تھی. اٹ واز دا اسٹارٹ کہ جب مجھے پتہ چلا, ادراک ہوا کہ میں شاید کچھ حد تک اچھا بول سکتا ہوں. صحیح. تو مجھے ایک کریز تھا کہ میں نے ایک تو وہ نہیں کرنا کہ جو ہر
ब्लाइंड पर्सन कर रहा है, एवरीबडी इज़ कंट्रीब्यूटिंग टू द बेस्ट, लेकिन मेरा ये था कि मुझे सिर्फ टीचिंग की तरफ या एक स्टीरियोटिपिकल एक जो वे हमारे लिए बना दिया गया है कि आपने ये करना है या आपके सिर्फ सोसाइटी में ये रोल्स हैं। अगर थोड़ा पसमानदा इलाकों की हम बात करते हैं तो समझा जाता है कि स्पेशल पर्सनस जो हैं वो हाफिज़ कुरान बन जाएगा और आने वाली बहुत सारी नस्लों के लिए ज़रिया बख्शिश बन जाएगा। वो बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसके साथ एजुकेशन और उसकी डेवलपमेंट बड़ी ज़रूरी है। बिल्कुल ऐसे। तो मेरी मदर की और मेरी टीचर्स की हमेशा सपोर्ट ये थी कि यू हैव टू डू समथिंग वेरी डिफरेंट फ्रॉम द अदर्स। तो ये एक मेरे अंदर था कि मैं अगर अच्छा बोल सकता हूँ तो एट सम पॉइंट ऑफ माई टाइम लाइफ आई विल गो टू मीडिया। ये कोई टेंजिबल प्लान नहीं था। मैंने मैट्रिकुलेशन किया, फिर एक बड़ा हिस्टोरिकल कॉलेज है भावलपुर में, सादिक एजर्टन कॉलेज, वहाँ से मैंने इंग्लिश लिटरेचर के साथ अपना इंटरमीडिएट कर रहा था। तो ऐसे ही मेरा एक दोस्त है, क्लास फेलो है, वो रेडियो वहाँ का जो मकामी एक FM स्टेशन था वहाँ पे प्रोग्राम करने जाया करता था। सही। ही पुश्ड मी कि यार आप अच्छा बोलते हैं तो जस्ट गिव इट अ चांस, मे बी के आप उस तरफ चले जाएं। मैंने ऐसे ही जाके कैजुअली ऑडिशन दिया एंड दैट वेंट वेरी वेल। दैट वाज द स्टार्ट कि जब मैंने प्रोफेशनली इसीलिए मेरे पास जो वो है अवार्ड है एज अ यंगेस्ट आरजे का। बिल्कुल। आई वाज हार्डली 16 ईयर्स ओल्ड और 17 ईयर्स ओल्ड जब मैंने रेडियो पे एज अ प्रोफेशनल आरजे अपीयरेंस दी थी। सर मैं यहाँ पे ये जानना चाहूँगा और यकीनन मुझे पूरी उम्मीद है और बड़ा यकीन है कि नाजरीन भी ये चीज़ जानना चाहेंगे। सर जब आप पहली दफ़ा कहीं इंटरव्यू देने के लिए गए मीडिया में और बतौर आरजे, तो उनका क्या एटीट्यूड था आपके साथ, क्या रवैया था, और उनको उस वक्त क्या लगता था और आपको उस वक्त क्या लगता था? To be very honest, it was a very big challenge for me and for the people who had to select me in their institutes. उन्होंने मुझे ऑडिशन कर लिया एंड उनके लिए सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये था कि इसकी आवाज़ तो अच्छी है, ये बोल तो लेता है। अब वो रेडियो में ज़ाहिर है कि आपने देखा होगा, आप माशाल्लाह रिकॉर्डिंग्स करते हैं, कि वो एक कॉम्प्लिकेशन होती है कि आपने अपना सिस्टम भी खुद हैंडल करना है, आपने फेड इन फेड आउट भी कंसोल को खुद करना है। बिल्कुल ऐसे। तो दैट वाज अ प्रॉब्लम फॉर देम। आई सेड कि नहीं, आई कैन डू दिस एंड दिस इज़ नॉट अ बिग इशू फॉर मी। वहाँ पे चैलेंज था। इवन दे थॉट कि नहीं, हम आपको सोलो प्रोग्राम नहीं दे सकते, आपको ऑन एयर कर नहीं सकते, आप अच्छा बोलते हैं, इसके और बहुत सारे चांसेस हैं। तो दिस वाज अ प्रॉब्लम कि एक्सेप्टेंस जो थी ना, उनका कॉन्फिडेंस आई कैन से कि वो नहीं था कि ये शायद टेक्निकलिटीज़ को भी समझेगा। तो मेरे लिए और उनके लिए, दोनों के लिए ये प्रॉब्लम था। मेरे लिए कन्विंस करना और उनके लिए कन्विंस होना वाला प्रॉब्लम। सही हो गया। अच्छा सर मुझे ये बताइएगा कि आप जब फिर इन हो गए, एक दफ़ा आपने उनको कन्विंस कर लिया, आपने प्रोग्राम्स शुरू कर दिए, उसके बाद आपको क्या चैलेंज फेस करना पड़ा? ये मतलब एक स्पेसिफिकली आपको क्या चैलेंज फेस करना पड़ा, और आम तौर पे आपको क्या लगता है कि मीडिया की फील्ड के साथ ये चैलेंजेस बहुत ज़्यादा मुंसलिक हैं? अच्छा, ये तो रेडियो था जो मैंने एज एन इंटरमीडिएट स्टूडेंट शुरू कर दिया एंड देन दैट वेंट वेरी वेल। लाइक जो फीडबैक था लिसनर्स का वो बहुत अच्छा आया और फिर उन्होंने मुझे रिलैक्स किया। दे थॉट कि हाँ ये कर सकता है और ये कर रहा है। लेकिन जब मैंने एज अ मीडिया स्टूडेंट अपना करियर स्टार्ट किया, कमिंग टू लाहौर फ्रॉम बहावलपुर, अच्छा ये एक बहुत बड़ा चैलेंज था, क्योंकि कहीं आपकी प्रोफाइल अगर इस्टेब्लिश हो गई है वहाँ पे तो आप काम कर रहे होते हैं। जब आप एक छोटे शहर से बहुत बड़े शहर में आते हैं जहाँ पे और जर्नलिस्ट्स बहुत सारे हैं, कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, फिर आप मीडिया के स्टूडेंट बन जाते हैं। टू बी वेरी ऑनेस्ट, हमारी मीडिया इंडस्ट्री के बहुत बड़े बड़े लोगों से मैंने जाके मुलाकातें की कि सर मैं ऑन कैमरा आना चाहता हूँ, आई एम एन एस्टेब्लिश्ड पर्सन ऑन रेडियो, इट इज़ प्रूव्ड कि अल्हम्दुलिल्लाह आई कैन स्पीक वेल, नाउ आई वांट टू बी सीन एज वेल। दैट वाज अ प्रॉब्लम फॉर द मीडिया प्रोफेशनल्स। बहुत बड़े बड़े नाम हैं, लेना ही नहीं चाहिए यहाँ पे। उन्होंने कहा कि नहीं, आप रेडियो में तो कंटिन्यू कर सकते हैं या आप प्रिंट जर्नलिज्म कीजिए, कैमरे की तरफ आने का मत सोचिएगा। ये एक टेक्निकल चीज़ है, आप कैमरा फेसिंग किस तरह करेंगे उसमें बहुत सारे टेक्निकल पॉइंट्स होते हैं। दैट वाज द बिगेस्ट चैलेंज। रेडियो वाज अ स्मॉलर थिंग। मेरा जो गोल था वो ये था कि आई हैव टू बी सीन ऑन टेलीविज़न, आई वांट टू बी द पर्सन कि जो एक रिकॉर्ड होल्डर हो कि जिसने
टीवी पे अपीयरेंसेस दी हैं बिकॉज ऑफ ब्लाइंडनेस, उसकी कोई प्रोफाइल में उस तरह का प्रॉब्लम नहीं आया। सही। तो ये प्रॉब्लम था क्योंकि जर्नलिज्म इटसेल्फ एक बड़ा रिस्की सा प्रोफेशन है। ऐसे ही है, इसमें कोई शक या तो आप क्लिक कर जाते हैं या फिर आप बहुत अरसे तक एक स्ट्रगलिंग फेज में रहते हैं। तो यहाँ आके मैंने रेडियो पाकिस्तान को ज्वाइन किया, हमारा कैंपस रेडियो था उसको ज्वाइन किया, एंड देन हमारे पंजाब यूनिवर्सिटी का एक टेलीविज़न है जो ऑन हाउस है, उसको जब मैंने ट्रायल बेसिस पे गया तो अल्हम्दुलिल्लाह उसकी जो प्रोडक्शन थी उसमें कोई फ्लॉज नहीं मुझे फेस करने पड़े। मेरे जो बॉसेस थे उन्होंने कहा कि जी आप कैमरा अपीयरेंस दे सकते हैं। अच्छा, अब वो जो वीडियोस थी आई यूज देम एज एन ऑडिशन ऑन डिफरेंट टेलीविजन चैनल्स एंड वेब रेडियोज और वेब चैनल्स। तो अल्हम्दुलिल्लाह पायनियर एक सोशल मीडिया का चैनल है, उर्दू पॉइंट उसका नाम है, दे गेव मी अ चांस इन 2017 व्हिच वाज अ रिकॉर्ड इटसेल्फ। सही। अच्छा सर, मैं ये जानना चाहूँगा कि हमारी यूथ जी आजकल उनके पास ऑलमोस्ट सब कुछ है। सब कुछ से मेरा मुराद ये है कि अगर कुछ साल पीछे चले जाएं, 15-20 साल पीछे चले जाएं, तो आपके पास इंटरनेट की एक्सेस नहीं है उस तरह। जी। लेकिन इंटरनेट की एक्सेस के साथ अब आपके पास कोई एक्सक्यूज़ नहीं बची। आप कोई भी काम कर सकते हैं, कोई भी चीज़ सीख सकते हैं, लर्न कर सकते हैं, और पैसे भी ज़ाहिर है किसी न किसी तरीके से कमा सकते हैं, जो फ्रीलांसिंग है और इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें। सर, यूथ हमारी डीमोटिवेट बहुत जल्दी हो जाती है। बहुत जल्दी वो अपनी नेमतों का शुमार नहीं करती, बल्कि जो एक दो कह लें कि लूप होल्स हैं या एक दो प्रॉब्लम्स हैं, उनको बहुत अपने माइंड में हाईलाइट कर लेती है। आपके ख्याल में उनको क्या एडवाइस देनी चाहिए, उनको क्या समझाना चाहिए, और उनका फोकस किस चीज़ पे होना चाहिए? अच्छा, वैसे तो मैं खुद को इतना काबिल नहीं समझता कि मैं एडवाइस कर सकूं। मैं यूथ से रिक्वेस्ट कर सकता हूं जी सर। कि अल्लाह ताला ने इंसान को बहुत पावरफुल बनाया है। जी सर। नॉनदलेस आपकी अगर कोई डिसेबिलिटी है, डिसेबिलिटी तो आपकी खुदा न खास्ता अगर है तो वो आपके जिस्म के एक हिस्से में है। सही। और जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है वो कहीं ना कहीं आपके लिए फ़ायदा मंद साबित हो जाती है। आई एम वेरी श्योर कि अगर मेरी विजुअल इम्पेयरमेंट ना होती तो शायद मैं आज आपके सामने बैठ के बात ना कर रहा होता। मैं एक ऑर्डिनरी सी कहीं शायद जॉब कर रहा होता या फिर अपने किसी और गोल के पीछे होता। शायद मेरी प्रोफाइल इतनी वेल एस्टैब्लिश ना होती। वजह ये थी कि मेरे अंदर एक डेफिशिएंसी थी जिसको ओवरकम करने के लिए अल्हम्दुलिल्लाह मैंने स्ट्रगल की, अल्लाह ताला ने मेरी मदद की। तो जिसको कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, अच्छा मेरे पास क्योंकि मैं काउंसलिंग भी करता हूँ, मोटिवेशनल सेशंस में भी बुलाया जाता है, इदारों की बहुत मेहरबानी है, तो बच्चे आके इस तरह के लेम एक्सक्यूजेस दे रहे होते हैं जिसका कोई सर और पैर वाकई में नहीं होता। फॉर एग्जांपल किसी को कोई फाइनेंशियल इशू है, जैसा कि आपने बताया कि एंटरप्रेन्योरशिप इतनी आगे चली गई है, फ्रीलांसिंग, अमेज़न, ईच एंड एवरीथिंग इतनी आगे चली गई है कि मेरा ख्याल है कि एक स्टूडेंट जो सिर्फ अपना कंप्यूटर ऑपरेट करना जानता है उसके लिए फाइनेंशियल इश्यूज तो होने ही नहीं चाहिए। मेरा ख्याल है कि मैं तो ये रिक्वेस्ट करूँगा और मैं अपनी मिसाल सिर्फ इस हद तक देना चाहूँगा कि अगर मैं एक अंडर प्रिविलेज्ड बैकग्राउंड, फाइनेंशियल, सोशल, प्लस हैविंग अ फिजिकल डिसेबिलिटी एज वेल, टू बी वेरी ऑनेस्ट, अगर मैं यहाँ तक पहुँच सकता हूँ ना तो बिलीव मी अली साहब कोई भी पहुँच सकता है। सही। सर, आपने ट्रेनिंग करवाई है बाहर के ममालिक में भी, स्वीडिश इंस्टीट्यूट है एक, वहाँ पे आपने ह्यूमन राइट्स के टॉपिक पे काफ़ी बातचीत की। सर, वो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? बहुत अच्छा रहा, एंड दैट वाज अ लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस। हमारे साउथ एशिया के बहुत सारी कंट्रीज़ के लोग वहाँ पे मौजूद थे, एंड आई वाज द ओनली पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ देयर। तो वहाँ पे उनका जो इंक्लूसिविटी का इंश्योरेंस है कि वो इंश्योर करते हैं और मेक श्योर करते हैं कि जो उनका एनवायरनमेंट है, वर्क एनवायरनमेंट है, एकेडमिक एनवायरनमेंट है और सोशल एनवायरनमेंट है, इंक्लूसिविटी और एम्पैथी मेरा ख्याल है कि उनसे अच्छी तो मैंने कहीं नहीं देखी। मैंने काफ़ी कंट्रीज़ में ट्रैवल किया है, जो स्वीडन की अगर मैं स्पेशली बात करूं और ओवरऑल यूरोप की, तो मुझे वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें जो आइडियल हैं, जो हमें यहाँ पे रेप्लिकेट करनी चाहिए, वो नज़र आई। उसकी मिसाल मैं आपको ये देता हूँ कि उनसे मेरी कॉरेस्पॉन्डेंस चल रही थी। मैंने ट्रैवल करना था सितंबर में, उनकी कॉल मुझे अप्रैल में आई कि हमें सितंबर की फ़लाँ डेट को फ़लाँ जगह से इतने किलोमीटर्स की वॉक करनी है,
विल यू बी ईजी टू वॉक, या फिर हमें आपके लिए टैक्सी बुक कर देनी चाहिए, या फिर हमें फ़लाँ जगह पे एक एक्टिविटी करनी है जहाँ पे नज़र का काम है, तो आप किस हद तक एक्सेसिबिलिटी आपकी इंश्योर हमें करनी चाहिए। इवन दे गेव मी प्रिविलेज कि मैं अपना असिस्टेंट पाकिस्तान से ट्रैवल करवा सकता हूँ। अच्छा। और उन्होंने सारे एक्सपेंसेस उसके और मेरे सारे वो बेयर किए। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम वहाँ से रेप्लिकेट करके, मैं अभी भी उनके अलुमनाइस के बोर्ड में हूँ और एम्बेसडर साहब के साथ हमारी वो रहती है कोऑर्डिनेशन, तो हम वहाँ से तो मेरा ख्याल है कि हम बहुत कुछ सीख के आए हैं। सही। अच्छा सर, आप सोशल वर्क की जहाँ तक बात कीजिए तो आप वाइस प्रेसिडेंट हैं स्कूल ऑफ इंक्लूजन के, और इसके साथ पाकिस्तान पैरा क्लाइंबिंग क्लब के। जी सर, इसके तहत आप क्या क्या काम अभी कर रहे हैं? ये 2 ऑर्गेनाइजेशंस हैं जी, जिनके जो प्रेसिडेंट एंड फाउंडर हैं सुलेमान अशर साहब हैं, आजकल बैरून मुल्क अपनी खिदमत दे रहे हैं, वो भी ब्लाइंड हैं। शाह साहब से भी बड़ा उनका मोहब्बत का ताल्लुक है। ये मेरा और उनका आइडिया था दोनों ऑर्गेनाइजेशंस का। जो पाकिस्तान पैरा क्लाइंबिंग क्लब है, आपने देखा होगा कि स्पेशल पर्सन्स की जो स्पोर्ट्स हैं वो बड़ी लिमिटेड हैं। ऐसे ही है। क्रिकेट ब्लाइंड लोगों की माशाल्लाह अच्छी है, उसको इनकरेज किया जाता है, लेकिन जो एडवेंचरस स्पोर्ट्स हैं वो हम ऑफर करते हैं पाकिस्तान पैरा क्लाइंबिंग क्लब के प्लेटफॉर्म से। वॉल क्लाइंबिंग है, रॉक क्लाइंबिंग है, और बाकी एडवेंचरस स्पोर्ट्स हैं विद ऑल द सेफ्टीज। क्योंकि जब आप किसी डिसेबिलिटी में होते हैं और आप कुछ एडवेंचरस करते हैं, तो मेरा ख्याल है आपको सेंस ऑफ एम्पावरमेंट एंड सेंस ऑफ एक्नॉलेजमेंट देता है कहीं ना कहीं। तो वो हम ऑफ़र करते हैं, डिफरेंट ट्रेनिंग्स भी करवाते हैं, उसके फिर हम कॉम्पिटिशन्स भी करवाते हैं, डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस के साथ कोलैबोरेट भी करते हैं। मोस्टली इस्लामाबाद और लाहौर में हम इवेंट्स करवाते हैं एडवेंचर स्पोर्ट्स के। बल्कि हमारे ही एक पार्टिसिपेंट्स पे BBC ने भी एक बहुत अच्छी डॉक्यूमेंट्री बनाई थी जिसमें अवार्ड भी हासिल किया था। और जो स्कूल ऑफ इंक्लूजन है, जहाँ पे मैंने अभी आपसे डिस्कशन भी हम कर रहे थे कि मेरा जो वर्क है वो ज़्यादा इंक्लूजन पे है, तो स्कूल ऑफ इंक्लूजन के तहत हम स्पेशल पर्सन्स और पीपल विद नो डिसेबिलिटीज़, इन दोनों की कोलैबोरेटिव ट्रेनिंग्स और सेशंस करवाते हैं। सही। इनके अंदर जो कम्युनिकेशन गैप है, दोनों को एक दूसरे का अंदाज़ा हो, कोलैबोरेशन हो, ताल्लुकात बने। एक तो ये सोशल एस्पेक्ट है कि हम सोशल ट्रेनिंग्स करवाते हैं। इसके अलावा डिफरेंट इदारों को हम ट्रेनिंग्स देते हैं कि उनकी जो पॉलिसी मेकिंग है रिगार्डिंग स्पेशल पर्सन्स वाइल गिविंग द सर्विसेज और एनी अदर हॉस्पिटैलिटीज़, किस तरह से आपकी पॉलिसी मेकिंग होनी चाहिए, आपका स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए। तो ये 2 ऑर्गेनाइजेशंस के ये 2 रोल्स हैं। सही। सर, आप एक यूनिक आइडिया पे काम कर रहे हैं, वो स्पेशल लोगों से लेके इस्लामिया यूनिवर्सिटी ऑफ भावलपुर के साथ। मैं चाहूँगा कि वो भी आप थोड़ा सा शेयर करें कि वो आप करंटली अभी क्या क्या काम करें। क्योंकि मैं बीइंग अ जर्नलिस्ट, हम बहुत सारे लोगों से इंटरेक्ट करते हैं, डिफरेंट वाइस चांसलर्स के साथ, डिफरेंट मिनिस्टर्स के साथ। तो मेरी कोशिश होती है कि अगर मैं प्योरली जर्नलिज्म के हवाले से भी किसी काम पे गया हुआ हूँ, तो मैं कहीं ना कहीं स्पेशल पर्सन्स की वेलफेयर का अगर वहाँ पे कोई पहलू निकलता है तो वो मैं उस पर काम करूँ। हमारे वाइस चांसलर हैं डॉक्टर अतर महबूब साहब, मेरा उनसे बड़ा मोहब्बत का और प्यार का रिश्ता है, शफकत करते हैं। उनसे मेरी मुलाकात एक इंटरव्यू के हवाले से हुई, तो उनको मैंने एक ऐसी आइडिया फ्लोट किया कि सर मैं यूरोप से ये सर्टिफिकेशन करके आया हूँ और मैं चाहता हूँ कि हमारी जो इस्लामिया यूनिवर्सिटी ऑफ भावलपुर है उसमें ये आइडियाज़ इम्प्लीमेंट हों। उन्होंने कहा जी बिल्कुल होने चाहिए। उनको हमने प्रपोज़ल दिया। अब वो आइडिया ये है कि जो हमारी जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं उनमें स्पेशल कोटा की सीट्स होती हैं। सही। हर रेगुलर प्रोग्राम में 2% स्पेशल पर्सन्स की सीट। इसका मतलब है कि हर यूनिवर्सिटी में जितने भी प्रोग्राम हो रहे हैं एटलीस्ट उतने स्पेशल स्टूडेंट्स वहाँ पे मौजूद होंगे, उससे ज़्यादा हो सकते हैं, कम नहीं होंगे। बिल्कुल ऐसे। तो वो कहीं ना कहीं नेग्लेक्टेड होते हैं। मैंने यहीं लाहौर की एक बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी से तालीम हासिल की है, मेरे और दोस्तों ने बहुत बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी से की है। लूप होल्स बहुत ज़्यादा हैं, सिस्टम में कॉपरेशन नहीं है। उसकी मिसाल मैं आपको देता हूँ, फिर इस प्रोजेक्ट की तरफ आता हूँ। मैंने अपने BS में एक एग्ज़ाम दिया, आई वॉज गुड एट इंग्लिश, तो मैंने वो पेपर बड़ा अच्छा कर दिया। मेरी टीचर ने मुझे उसमें कम नंबर दिए जब मैं गया कि सर ये नंबर इसमें कम आया। उन्होंने कहा कि पेपर तो आपका 34 आउट ऑफ 35 वाला था, मैंने इसलिए आपको कम नंबर दें कि कहीं मेरे पे क्वेश्चन ना आ जाए कि आपने एक ब्लाइंड पर्सन को इतने कम नंबर क्यों दिए। सही सही सही। ये मेरे लिए और दूसरों के लिए भी लम्हा फ़िक्रिया होना चाहिए कि अगर एक स्पेशल पर्सन
محنت کر کے اچھا پیپر دے رہا ہے تو یہ کیا اس کی اچیومنٹ نہیں ہے کہ اس نے اچھا پیپر دیا؟ بالکل ایسے. تو وہ اس طرح کے لوپ ہولز ہیں. تو ہم نے یہ جو سینٹر ایکسیسیبلٹی سینٹر ہم نے پرپوز کیا اسلامیہ یونیورسٹی آف بہاولپور کو. ہمارے ایڈمنسٹریٹو جتنے بھی ایشوز ہیں بچوں کی فی ویو آف کرنے سے ان کے ایکڈیمک ایشوز سے لے کے فیسلیٹیشن جتنی بھی ہے وہ ایک ہم نے ون ونڈو آپریشن آپ سمجھیں کہ بنا دیا کہ اسپیشل پرسن جب آئے گا اس ادارے کو پتہ ہوگا کہ اس سال کتنی انڈکشن ہے اسپیشل پرسنس کی, ان کو کتنے لوگوں کو ہاسٹل چاہیے, کتنے لوگوں کو اسپیشل ٹرانسپورٹیشن چاہیے. اسلامیہ یونیورسٹی آف بہاولپور پاکستان کی پہلی یونیورسٹی ہے کہ جو ڈیڈیکیٹڈ ایک ڈائریکٹریٹ بھی جس نے بنایا ہے ان تمام اسٹوڈنٹس کو کیٹر کرنے کے لیے, پلس ہماری ٹرانسپورٹ بھی بڑی اسپیشل ہے. لائک ہماری ٹرانسپورٹ الگ ہے نارمل اسٹوڈنٹس کے علاوہ, اسپیشل بچوں کو الگ پک اینڈ ڈراپ ہے اکارڈنگ ٹو دیئر اسکیجول. تو یہ ایک آئیڈیا تھا. ہم نے کچھ چیزیں یورپ سے بھی ریپلیکیٹ کی ہیں جو میری سرٹیفکیشن کے دوران میں نے لرننگس کی. تو پاکستان کی پہلی یونیورسٹی ہے جس نے ایک ڈیڈیکیٹڈ ڈائریکٹریٹ بنایا ہے جو سوشل انکلوژن, اسٹرکچرل ایکسیسیبلٹی, اسکل انہینسمنٹ اور امپاورمنٹ پہ, پروفیشنل امپاورمنٹ پہ کام کرے. صحیح. تو اس کو ایز اے ڈائریکٹر میں جناب لیڈ کر رہا ہوں. ماشاء اللہ سر. سر میں یہ جاننا چاہوں گا کہ قاسم علی شاہ فاؤنڈیشن کے کام کو اور قاسم علی شاہ صاحب کے لیکچرز کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ قاسم علی شاہ صاحب کا آپ نے نام لیا ہے تو ان کا نام میرا خیال ہے کہ کانوں کو, سماعتوں کو ہی ایک میرا خیال ہے مسرت دیتا ہے. شاہ صاحب سے بھی ہمارا جو تعلق ہے لرننگ کے حوالے سے تو کافی پرانا ہے اور ان سے ملاقاتوں کا سلسلہ بھی کوئی 2016-17 سے ہے. میں آپ کو ایک بہت آنیسٹ بات بتاؤں, جب میں اپنے کریئر کے بالکل سٹارٹ پہ تھا نا تو میں شاہ صاحب کا انٹرویو کرنے آیا اسی ادارے میں. انہوں نے وہاں تب ایک مجھے بات کہی کہ جب انٹرویو ہم نے ریپ اپ کیا نا, انہوں نے کھڑے ہو کے مجھے گلے لگایا, تھپکی دی. ان کا بیٹا تمہارے اندر نا بڑے آدمیوں والی کوالٹیز ہیں. میں لوگوں سے ملتا ہوں اور میرا کام یہی ہے لوگوں کو جج کرنا, تو میں نے تمہارے اندر بڑے لوگوں والی کوالٹیز دیکھی ہیں. آپ انٹرویو کو آرگنائز کر کے آئے ہیں, مجھے اسٹڈی کر کے آئے ہیں. اچھا, اس نے مجھے اتنا زیادہ اس جملے نے کانفیڈنس دیا, میں نے واقعی اپنے آپ کو ایک بڑا آدمی سمجھنا شروع کر دیا. اگر اب میں کوئی 3-4 سال بعد اس جملے کو ایویلویٹ کرتا ہوں نا تو اب مجھے پتہ ہے کہ میں اس وقت کچھ بھی نہیں تھا. ان کا وہ جو جملہ تھا وہ ایک پلانڈ جملہ تھا کہ یہ ایک میرا خیال ہے کہ اسٹرگلنگ فیس میں ہے, تو انہوں نے چاہا کہ اس کو میں یہ جملہ کہوں گا تو یہ کہیں نہ کہیں موٹیویشن لے جائے گا, اور ایگزیکٹلی ویسا ہی ہوا. ان کے اس ایک انکریجمنٹ کے اور موٹیویشن کے جملے نے مجھے بہت امپاورمنٹ دی. تو ان سے تو محبت کا اور پیار کا اور لرننگ کا بہت گہرا تعلق ہے شاہ صاحب سے میرا. تھینک یو سو مچ زین خان صاحب, آپ نے ہمارے لیے ٹائم نکالا. ناظرین, مجھے امید ہے کہ اس انٹرویو سے آپ کو بہت فائدہ ہوا ہوگا. یقیناً آپ نے بہت کچھ سیکھا ہوگا کہ انسان کس طرح سے کام کر سکتا ہے. اگر اس کے اندر ایک وہ کام کرنے کا جذبہ اور اس کی نیت درست ہو تو کوئی بھی کام مشکل نہیں ہوتا, بلکہ راستے بھی اللہ تعالیٰ اس کے لیے خود بخود بنا دیتا ہے. when there is a will then there is a way. تو اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے, اپنا بہت ہی خیال رکھیے گا. انشاءاللہ دوبارہ حاضر ہوں گے ایک نئے انٹرویو کے ساتھ. اللہ حافظ.